My lovely students, welcome to Mathological. How are you all? Comment about level of your preparation in the comment section. Start करते हैं session को. And if you've not already subscribed to our YouTube channel, तो subscribe करना है, साथ बेल आइकन भी press कर देना. And you can also join me on Telegram at Mathological, or you can communicate with me on Telegram at ADITYAKT. My name is Adit Kumar Tiwari, and first question of this session on permutations and combinations. So first question: in how many ways 2,16,000 can be written as a product of three natural numbers? कितने वेज होंगे? पॉज द वीडियो, सॉल्व इट. वी ऑलरेडी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, सो बस उसको अप्लाई करना है, नथिंग एल्स. तो 2,16,000 is the number, and we have to write this as a product of three natural numbers. So since we are writing this as a product of three natural numbers, numbers have not been named, variables have not been named, so this is definitely a unordered solution वाला case. Unordered, order is not important. ठीक, ओके. बट पहले सॉल्यूशंस निकालने के लिए हम ऑर्डर्ड वे में सॉल्यूशन निकाल लेते हैं. देन उसके बाद में सेम प्रोसेस अपना कि सिंस देयर आर थ्री नेचुरल नंबर्स, सो ऑल थ्री कैन बी डिस्टिंक्ट, टू ऑफ देम कैन बी आइडेंटिकल और ऑल थ्री कैन बी आइडेंटिकल. सो उन केसेस में वैल्यूज निकालेंगे, अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो फॉर ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस, बिकॉज अनऑर्डर्ड डायरेक्टली तो निकलेगा नहीं. तो इन दैट केस 2,16,216 is 6 cube. So this is 6 cube into 10 cube. So basically this number is 2 to the power 3, 3 to the power 3, then 2 to the power total 6 आ रहा है, 3 cube and 5 cube. So basically this number is a perfect cube, because this can be written as 6 into 10 whole cube, यानी 60 का whole cube है. So this is a perfect cube, isn't it? अब यहाँ पे निकालना है हमें टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे, ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस. तो फॉर ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस, three numbers, let us say numbers are n1, n2, n3. Numbers will be in general format, 2 to the power something, 3 to the power something, and 5 to the power something. Let us say 2 to the power a1, 3 to the power b1, 5 to the power c1 for n1. For n2, 2 to the power a2, 3 to the power b2, 5 to the power c2, and for n3, 2 to the power a3, 3 to the power b3, and 5 to the power c3. अब तीनों को मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट आ जाएगा हमारा n1 into n2 into n3, that is equal to 2,16,000, and that will be equal to 2 to the power a1 plus a2 plus a3 multiplied by 3 to the power b1 plus b2 plus b3 multiplied by 5 to the power c1 plus c2 plus c3. और एक्चुअल में ये नंबर क्या रहा है, दिस इज इक्वल टू 2 to the power 6, 3 to the power 3, 5 to the power 3. तो कंपेयर द पावर्स ऑफ दीज प्राइम नंबर्स. सो इक्वेशन बन जाता है हमारा a1 plus a2 plus a3. This is equal to 6. b1 plus b2 plus b3, this is equal to 3. And c1 plus c2 plus c3, this is equal to 3. Number of solutions तीनों केसेस में निकालने हैं. And we know कि all these values a1 हो, a2 a3 हो, b1 b2 b3, all these are greater than equal to 0. And since सारे numbers हमारे इंटीजर हैं, so इंटीग्रल सॉल्यूशंस ही निकालने होंगे हमें पावर्स के लिए भी. So if a1 a2 plus a3 that is equal to 6, और हमें चाहिए greater than equal to 0 वाले, यानी कि इंटीग्रल सॉल्यूशंस एज सच, इंटीग्रल सॉल्यूशंस बोले, और नॉन नेगेटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस, इजंट इट सो? कितने आएंगे? 6 स्टार्स होंगे एंड 2 बार्स होंगे, बिकॉज 3 पार्ट्स में ब्रेक करना है 6 को. तो 6 + 2 8c3, 8c2, 3 नहीं होगा, 2 होगा, 8c2, 6 स्टार्स एंड 2 बार्स, 8c2 इज इक्वल टू 28. सिमिलरली सेकंड केस में b1 plus b2 plus b3 that is equal to 3, and all are greater than equal to 0. Number of solutions 3 stars 2 bars 5c2 which is equal to 10. Same for the third case as well, 5c2 which is equal to 10. Again यहाँ पे भी greater than equal to 0 था. तो टोटल केसेस क्या आ गए हमारे? For powers of 2, 28 cases. For powers of 3, 10 cases. For powers of 5, 10 cases. 28 into 10 into 10. Total solutions will be 2800. 2800 solutions, but these are ordered solutions. These are ordered solutions, isn't it? So तो हमें unordered करना पड़ेगा इनको. तो total 3 cases will be there. First case, when all natural numbers are distinct. ठीक है, फॉर्मेट होगा टिपिकल एबीसी टाइप. नंबर ऑफ सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट अस से p है. सेकंड केस, व्हेन 2 आर आइडेंटिकल, इफ 2 आर आइडेंटिकल, लेट अस से दोस 2 आइडेंटिकल आर a, तो a स्क्वायर इंटू b फॉर्मेट होगा. लेट अस से q सॉल्यूशंस आएंगे. एंड थर्ड सिनेरियो, ऑल आइडेंटिकल, so that will be like a cube.
लेट अस से आर सॉल्यूशंस आएंगे, ठीक है। इफ ऑल आर आइडेंटिकल तो वैसा तो एक ही केस बन सकता है, या तो एक केस बनेगा या 0 केसेस बनेंगे। नाउ इन दिस केस सिंस दिस इज अ perfect cube है, दिस इज 60 का होल क्यूब, तो डेफिनेटली विल बी गेटिंग दैट वन सॉल्यूशन दैट दिस इज 60 का होल क्यूब, यानी कि a इज इक्वल टू 60 वाले केस में we'll be getting all identical 60 into 60 into 60, यानी कि r in this case will be equal to 1। यहाँ पे हमारा r प्रीवियस केस जैसे हमने लास्ट सेशन में लिया था उसकी तरह 0 नहीं होगा। इन दिस केस इन दिस टाइम केस इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन r हमारा इक्वल टू 1 आ जाएगा। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं व्हेन 2 आर आइडेंटिकल। टोटल हमारा आ रहा है दिस इज 2 टू द पावर 6, 3 टू द पावर 3 एंड 5 टू द पावर 3। और 2 आइडेंटिकल वाले केस में क्या होगा, ए स्क्वायर इंटू बी, यानी कि पावर इवन होगा, ठीक है। इवन पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू बी। तो 2 टू द पावर 6 को अगर हम स्क्वायर्स देखें यहाँ पे कितने बन सकते हैं, तो 2 टू पावर 0 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, या 2 टू पावर 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली 2 टू पावर 1 का होल स्क्वायर, 2 टू पावर 2 का होल स्क्वायर बन सकता है, 2 टू पावर 3 का होल स्क्वायर बन सकता है, या 2 टू पावर 4 का होल स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा, बिकॉज 2 टू पावर 6 तो यहीं पे आ गया, इसके बाद तो पॉसिबल नहीं, बिकॉज मैक्सिमम पावर ऑफ 2 कैन बी 6, यानी कि 4 पॉसिबल केसेस। सिमिलरली 3 की पावर में 3 टू पावर 0 होल स्क्वायर कैन बी देयर, और 3 टू पावर 1 होल स्क्वायर कैन बी देयर, 3 टू पावर 2 होल स्क्वायर हो जाएगा 3 टू पावर 4, एंड मैक्सिमम पावर ऑफ 3 कैन बी इक्वल टू 3, तो 2 केसेस। सिमिलरली 5 में भी हमारे 2 केसेस बनेंगे, 5 टू द पावर 0 होल स्क्वायर एंड 5 टू द पावर 1 होल स्क्वायर। टोटल केसेस फॉर अ perfect square will be 4 into 2 into 2, that is equal to 16 cases, because 2 की पावर के लिए there are 4 possibilities, 3 की पावर के लिए 2 possibilities, 5 की पावर के लिए 2 possibilities, 4 into 2 into 2 16 will be total number of cases। okay, so q का वैल्यू क्या आएगा when 2 are identical, 16 तो टोटल केसेस बनेंगे हमारे, बट दिस 16 दिस q ऑलवेज इंक्लूड्स r, बिकॉज 2 आइडेंटिकल वाले में एक केस ऐसा होगा जहां पे कि तीनों आइडेंटिकल हो जाएंगे, सो दैट केस मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। सो एग्जैक्टली 2 आइडेंटिकल है हमारा, नॉट 2 आइडेंटिकल, एग्जैक्टली 2 आइडेंटिकल। सो एग्जैक्टली 2 आइडेंटिकल वाले में हमारे 15 केसेस होंगे, ठीक है। सो p का वैल्यू क्या आ जाएगा, नाउ वी नो दैट q वाले केसेस में सिंस 2 आर आइडेंटिकल, सो ऑर्डर्ड सॉल्यूशंस में दिस विल मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। थर्ड वाले ऑल आइडेंटिकल में दिस विल मल्टीप्लाइड बाई 1 ओनली, ठीक है। सो p का वैल्यू क्या आ जाएगा, p विल बी टोटल, ऑल आइडेंटिकल वाला केस ऑल डिस्टिंक्ट विल बी टोटल माइनस pq प्लस r divided by 3 factorial, total was 2800 minus 3 into 15 plus 1, ब्रैकेट के अंदर प्लस 1 किया है, ब्रैकेट के बाहर रखोगे तो फिर माइनस 3q माइनस r होगा, ये ध्यान रखना, ऐसी गलती मत करना, एंड देन डिवाइड बाई 6, तो दिस बिकम्स 2800 माइनस 46, तो 2754 बाई 6 विच इज इक्वल टू 459, तो p की वैल्यू आ गया 459, बट हमें चाहिए है total in how many ways this can be written, which will be equal to p plus q plus r, because all will be counted exactly once in unordered solutions। ordered होता तो फिर 6p plus 3q plus r होता, but unordered में all these will be counted exactly once, तो total हमारा आंसर क्या आ जाएगा, that will be 459 which is equal to p plus 15 plus 1 which is equal to 475 will be total number of ways to write 2,16,000 as a product of 3 natural numbers। our solution will be 475। is that clear? okay, ठीक है। सो वी अंडरस्टूड अनदर सच क्वेश्चन जैसा हमने प्रीवियस सेशन में किया था, एंड इन दिस केस दिस वाज आल्सो अ परफेक्ट क्यूब, सो दैट इज व्हाई r वाज आल्सो इक्वल टू 1। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो कि तुम्हें अपने एंड पे करना है, लास्ट सेशन में हमने इसका पूरा कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है। सो कमेंट योर आंसर्स फॉर पार्ट ए एंड पार्ट बी। You find the number of integral solutions of x, y, z is equal to 2,16,000, and in how many ways 2,16,000 can be written as a product of 3 integers। Comment your answers for part A and part B accordingly। okay, and साथ में कमेंट करना कि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आया, मजा आया इसमें। okay, सीखा इस चीज़ को। okay, so with that note नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Now this is another good question based on similar concept, identical concept है, ठीक है। बस limitations ध्यान रखना है हर एक केस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस लिमिटेशंस हमारा क्या होगा, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि इफ Ajita is recording all possible outcomes when 3 dice are rolled together, all possible outcomes when 3 dice are rolled together, so what percentage of these outcomes have a sum of exactly 10। 3 dice हैं जिनको रोल कर रहे हैं, और अनलेस अदरवाइज मेंशन, तो डाइस हमारा क्या होता है, डाइस इज ऑलवेज अ क्यूब, क्यूब होता है विच हैज 6 आउटकम्स, 1 और 2 और 3 और 4 और 5 और 6, these 6 results are possible in a dice।
नाउ व्हेन 3 डाइसेस आर रोल्ड, तो हर एक डाइस में 6 पॉसिबिलिटीज बनेगी। टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे भाई? डाइस 1, डाइस 2, डाइस 3। डाइस 1 में 6 पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, डाइस 2 में 6 एंड डाइस 3 आल्सो 6। तो total outcomes will be 6 into 6 into 6, that is 216. These are total outcomes. But the question is asking what percent of these outcomes have a sum of exactly 10. हमें चाहिए sum exactly 10. So let us say कि डाइस नंबर 1 में हमारा आउटकम आ रहा है A, डाइस 2 में आ रहा है B एंड डाइस 3 में आ रहा है C. So in that case A plus B plus C that should be equal to 10. And we need to find out कि how many such outcomes will be there. In case of A plus B plus C is equal to 10, कितने आउटकम्स हमारे बनेंगे? ओके ठीक है, सिंस वी नो कि all these A, B and C, all these values can be between 1 and 6, मिनिमम 1 होंगे और मैक्सिमम 6 होगा, और ऑब्वियसली इंटीजर होंगे, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 6. सो ऑल दीज वैल्यू सिंस A, B, C ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो पहले टोटल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए. तो सबसे पहले तो सबको 1 1 अलॉट कर दो. तो A कैन बी स्मॉल A कैन बी रिटन एज 1 प्लस कैपिटल A, 1 प्लस A, 1 प्लस B, 1 प्लस C लिख दोगे तो 3 राइट हैंड साइड में जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. सो दिस इफेक्टिवली इक्वेशन बिकम्स कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C, दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 7. नाउ कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो अब सॉल्यूशन निकालना स्ट्रेट अवे हमारे लिए आसान है, विच विल बी 7 स्टार्स एंड 2 बार्स 9C2 विच इज इक्वल टू 36. अच्छा, पहले वाले केस में भी निकाल सकते थे. पहले वाले केस में कैसे निकालते? क्योंकि हमें पता था कि सिंस वी नीडेड ऑल A, B and C ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो वहां पे हम क्या है गैप ले लेते कि 10, हमने 10 टाइम्स 1 लिखा, बीच में 9 गैप्स आए, तो 9 में से हमें 2 गैप्स को सेलेक्ट करना है. Isn't it so? क्योंकि वहां पे ही हम बार लगाएंगे 3 पार्ट से ब्रेक करने के लिए, तो 9C2 विल बी अवर आंसर विच इज इक्वल टू 36. बट शुड दिस बी अवर फाइनल आंसर? क्या ये फाइनल आंसर होगा? अगेन सिंस मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 6, मैक्सिमम आउटकम कैन बी 6 इन वन पर्टिकुलर डाइस, तो 6 से बड़ी भी केसेस होंगे जो कि यहाँ पे बन रहे होंगे, उन केसेस को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा. सो वी नो फॉर श्योर दैट स्मॉल a हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 6. इजंट इट सो? तो स्मॉल a ग्रेटर देन 6 वाले केसेस को एलिमिनेट करेंगे. बट सिंस हमारी इक्वेशन में कैपिटल A मेंशन्ड है, तो कैपिटल A की वैल्यू क्या होगा? कैपिटल A शुड बी, बिकॉज स्मॉल a इज इक्वल टू 1 प्लस कैपिटल A, कैपिटल A मैक्सिमम कितना हो सकता है? 5 हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी हमने 1 अलॉट कर दिया है भाई. 6 मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल था, 1 पहले ही अलॉट कर दिया, तो 5 बचा. अब जो बचा हुआ है कैपिटल A हमारा, दैट कैन एट मैक्स बी इक्वल टू 5. 5 से बड़ा वैल्यू लेगा तो उन केसेस को एलिमिनेट करेंगे. तो कैपिटल A, ठीक है, ग्रेटर देन 6 लिखा था यहाँ पे, ठीक है. सो कैपिटल A ग्रेटर देन 5 वाले केसेस को एलिमिनेट करेंगे, और वी कैन से कैपिटल A ग्रेटर देन इक्वल टू 6, बिकॉज 5 से बड़ा होगा तो 6 या उससे बड़ी वैल्यूज को एलिमिनेट करना पड़ेगा. ठीक है, both these statements are saying the same thing because ultimately capital A is an integer. तो capital A greater than 5 यानी कि greater than equal to 6 वाले जितने भी केसेस होंगे उनको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा. सो सिंस नाउ फॉर एलिमिनेशन 9C2 तो टोटल केसेस आ गए अपने काम के. ठीक है, इनमें से जो केसेस नाकाम हैं, बेकार हैं, उनको हटाएंगे. सो कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C, दैट इफ दैट इज इक्वल टू 7, तो वी हैव टू एलिमिनेट दोज केसेस व्हेन कैपिटल A इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6. ठीक है, बाकियों को 0 रखो और कैपिटल A को रख दो ग्रेटर देन इक्वल टू 6. तो पहले ही 6 अलॉट कर दो. जैसे ही 6 अलॉट कर दोगे तो रिमेनिंग बचेगा 1. तो नाउ कैपिटल A डैश प्लस B प्लस C दैट इज इक्वल टू 1. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आएंगे? बिकॉज नाउ ईच कैन बी ग्रेटर इक्वल टू 0. तो 1 स्टार एंड 2 बार 3C2. तो 3 such cases will be there when outcome on the first dice would have been considered greater than 6. Isn't it so? यही सेम हमारा सिनेरियो बनेगा जबकि B डैश वाला करेंगे. A प्लस B डैश, यही सेम कहानी B के लिए करेंगे, वहां से ही मिलेगा 3C2. ठीक है, यही सेम कहानी C के लिए करेंगे. तो टोटल अपने काम के केसेस विल बी 36 माइनस फॉर A व्हेन A इज ग्रेटर देन 6 3 cases, 3C2 or 3 cases when B is greater than 6 3 cases, when C is greater than 6 3 cases, total 3 into 3, 36 minus 3 into 3C2. So our answer will be 27. 27 will be our answer in this case. क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो, समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? ओके, ठीक है, इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन हमसे पूछा था परसेंटेज ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो परसेंटेज क्या होगा हमारा? टोटल वर 216 और रेलेवेंट आर 27, तो 27 by 216 विल बी आवर आंसर, which is equal to 1 by 8, which will be 12.5%. Our final answer will be 12.5%. अच्छा, सिंस डाइस में
मिनिमम आउटकम कैन बी 1 इन वन पर्टिकुलर डाइस और मैक्सिमम आउटकम कैन बी 6, ठीक है। सो दैट वे ऑल्सो हम फॉर श्योर यहाँ पे अपना ऑर्डरिंग करके, ठीक है, मैनुअली भी हम इन केसेस को निकाल सकते हैं, तो वो मेथड भी सीख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे टोटल डाइसेस हमारे कितने थे? 3 थे, ठीक है। तुम्हारा सारा एस्पेक्ट कवर हो जाए उसके लिए एक चीज़ और समझते हैं। देखो 3 डाइसेस है, मिनिमम कितना आता है हमारा? मिनिमम आउटकम्स वुड हैव बीन 1 1 1, तो सम मिनिमम कुड हैव बीन 3, ठीक है। दिस इज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम पॉसिबल। मैक्सिमम क्या था? मैक्सिमम ऑल 6, 6 प्लस 6 प्लस 6, यानी कि मैक्सिमम सम कुड हैव बीन 18, ओके, ठीक है। सो मिनिमम सम कुड हैव बीन 3 एंड that can happen only in one way, when all these 3 dices are showing 1. Maximum sum can be 18 and that again can happen in only one way, when all 3 dices are showing number 6. अब अगर हमें चाहिए होता sum 4, तो sum 4 कितने ways में आ सकता था? For sum 4, one of the dices will be showing outcome 2, तो 1 plus 1 plus 2 से 4 बनेगा, ठीक है। तो 2 या तो थर्ड डाइस में आएगा या सेकंड में आएगा या फर्स्ट में आएगा, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 1 और 2 प्लस 1 प्लस 1, तो टोटल 3 केसेस होंगे और रिजल्ट टोटल सम टू बी 4। सिमिलरली अगर हमें 17 आउटकम चाहिए होता, देखो मिनिमम 3 था एग्जैक्टली 1 वे, मैक्सिमम 18 था एग्जैक्टली 1 वे, ठीक है। अब 3 के बाद में 4 कैन हैपन इन 3 वेज। सिमिलरली अगर 17 चाहिए होगा तो 17 के लिए क्या करेंगे? 4 के लिए वी इंक्रीज्ड वन ऑफ द 3 आउटकम्स बाई 1, तो दैट कैन बी डन इन 3 C1 वेज। सिमिलरली 17 के लिए वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 1, ठीक है। क्या समझ पा रहे हो कि क्योंकि एक हमारा सिमेट्री है, तुम मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाओ या मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जाओ, दोनों केसेस में क्योंकि परफेक्ट सिमेट्री है, तो 4 आउटकम आने के लिए, 4 सम ऑफ द आउटकम्स आने के लिए जितने नंबर ऑफ वेज होंगे, सिमिलर विल बी नंबर ऑफ वेज फॉर 17 एज वेल, बिकॉज 17 में क्या करोगे? 1 सब्ट्रैक्ट करोगे, सो इधर दिस कैन बी 6 प्लस 6 प्लस 5, तो 5 चाहिए होगा हमें किसी एक में, तो इधर दिस कैन बी 6 प्लस 5 प्लस 6 और 5 प्लस 6 प्लस 6, तो अगेन यहाँ पे भी 3 वेज होंगे, ओके। तो 3 के और 18 के नंबर ऑफ वेज सेम होंगे, 4 के और 17 के नंबर ऑफ वेज सेम होंगे, 5 के और 16 के भी नंबर ऑफ वेज सेम होंगे, बाय द सेम लॉजिक। सिमिलरली बाकी नंबर्स का भी निकाल सकते हो, ठीक है। सो क्या ये बात समझ पा रहे हो? तो अल्टीमेटली 3 प्लस 18 कितना आया? 21 आया, 21 आया। 4 प्लस 17 भी 21 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमें 17 के आउटकम निकालने हो तो हम 4 के आउटकम्स निकालेंगे तो भी हमारा आंसर एक्जैक्टली सेम आएगा। इंस्टेड ऑफ काउंटिंग नंबर ऑफ वेज फॉर 17 वी कैन काउंट नंबर ऑफ वेज फॉर 4। अगर हमें क्वेश्चन पूछे कि फॉर हाउ मेनी आउटकम्स द सम विल बी एक्जैक्टली 17, तो 17 के निकालने से बेटर होगा 4 के आउटकम निकालना। क्यों होगा ये भी हम आगे एक क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। बट क्या लॉजिक समझ पा रहे हो कि सेम हमारा नंबर ऑफ वेज रहेंगे, चाहे 17 के निकालो या फिर 4 के निकालो, ठीक है। सिमिलरली एज लॉन्ग एज सम हमारा 21 आ रहा हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज अगर हमें चाहिए सम 3 और 18 सेम होंगे, 4 और 17 सेम होंगे, 5 और 16 सेम, 6 और 15 सेम, 7 और 14 अगेन सेम, 8 और 13 सेम, 9 और 12 सेम, 10 और 11 सेम। So in these cases number of outcomes will be same, okay, we'll be using this concept as well। बट अब एक बार मैनुअली भी चेक कर लेते हैं कि अगर हमें सम चाहिए 10 तो मैनुअली इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, जो ऑर्डरिंग हमने एक दो कुछ सेशंस पहले सीखा है, ठीक है। सो सिंस वी नीडेड सम इक्वल टू 10 फ्रॉम दीज 3 आउटकम्स, देखो मल्टीपल वेज है, तुम्हें इसलिए बताता हूँ अपने एंड पे भी उन मल्टीपल वेज को सीखना है, सो दैट किसी और क्वेश्चन को तुम इजिली, जहाँ पे कि हमें काउंटिंग मैनुअल काउंटिंग में इजिली करना हो, कम केसेस बन रहे हो, तो स्ट्रेट अवे काउंट करके सॉल्व कर लो उसको, वहाँ पे केसेस एलिमिनेट करने का और बाकी चक्कर फैलाने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सम हमें चाहिए 10, सिंस मैक्सिमम वैल्यू इन वन पर्टिकुलर डाइस कैन बी 6, तो सबसे पहले स्टार्ट करो, लेट अस से एक डाइस में वैल्यू आ गया 6, टोटल सम 10 चाहिए था, 6 ऑलरेडी आउटकम आ गया हमारा, तो रिमेनिंग बचा 4, बिकॉज 6 प्लस 4 इज 10। तो अब इसके बाद में मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 4 0 तो लोगे नहीं, बिकॉज 0 आउटकम आना नहीं है, तो 631, बिकॉज मिनिमम तो 1 आएगा, ठीक है। 631, देन नेक्स्ट कैन बी 22, 622, अब फिर से एक बार सब्ट्रैक्ट करोगे तो 613 हो जाएगा, जो कि अगेन रिपीटिशन हो जाएगा 631 का। तो यही दो केसेस पॉसिबल हैं व्हेन एक डाइस में हमारा आउटकम 6 आ रहा है, ठीक है। 631 एंड 622, दीज आर 2 पॉसिबल केसेस व्हेन वन डाइस इज शोइंग आउटकम इक्वल टू 6। तो अब पहले वाले डाइस में नंबर को रिड्यूस करो, 6 से 5 कर दो, अब बचे हुए दो में चाहिए 5 सम, तो इधर दिस कैन बी 5 50 तो होगा नहीं, तो 541, ठीक है। हमेशा जैसे ही तुमने 6 लिया है, तो अब 6 के बाद में इस पोस्ट पे वैल्यू तुम्हें मैक्सिमम लेना है जो पॉसिबल हो। 6 6
तो नहीं ले सकते थे बिकॉज सम में मैक्सिमम 10 ही चाहिए था, तो 631 वाज द ओनली पॉसिबल केस। सिमिलरली यहाँ पे 541 आ गया, नाउ नेक्स्ट कैन बी 532। अब इसके बाद में फर्दर 523 करोगे, रेपिटेशन हो जाएगा, तो खत्म हो गया केस 5 वाले। देन 4 ले लिया, सम बचा रिमेनिंग 6, तो क्या ले सकते हो, देन 442 कैन बी देयर, ठीक है, और 433 कैन बी देयर। ओके, अब इसके बाद में अगर तुमने 3 लिया तो 3 पे पता है तुम सारे भी 3 ले लोगे, तब भी सम तुम्हारा 9 आने वाला है, तो अब कोई केस इसके बाद बनने वाला नहीं है। दीज आर ऑल द पॉसिबल केसेस, दीज आर ऑल द पॉसिबल केसेस विदाउट एनी रेपिटेशन। एक परफेक्ट ऑर्डर में करोगे तो कभी भी रेपिटेशन नहीं होगा, तुमसे गलती नहीं होगा। हाँ, इसको सीखने में स्टार्ट में तुम्हें कुछ रेपिटेशंस लगेंगे अपने एंड पे, कुछ प्रैक्टिसेस लगेगा, तो वो अपने एंड पे सम 11 के लिए केसेस बना के देख लेना और फिर प्रॉपर्ली सॉल्व करके देख लेना और अपने एंड पे चेक कर लेना कि तुमसे गलती तो नहीं हुआ। तो ठीक है, तो 631 सिंस ऑल आर डिस्टिंक्ट, तो कितने वेज में अरेंज कर सकते हो 631 को, टोटल 3 फैक्टोरियल वेज में, विच इज इक्वल टू 6। 622 3 वेज में, 3 फैक्टोरियल बाई 2। 541 अगेन ऑल डिस्टिंक्ट 6 वेज। 532 ऑल डिस्टिंक्ट 6 वेज। 442 3 वेज। 433 3 वेज। टोटल आ गया हमारा 9 plus 12 21 plus 6 27 आर टोटल वेज। तो डायरेक्टली मैनुअली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 27 इज आवर आंसर। क्लियर है? ऐसे भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। क्या ये बात अप्रिशिएट कर पा रहे हो? क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, सो दिस वॉज अनदर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Next is if 4 dice are thrown together, then find number of ways such that sum of the outcomes together is 20. Sum of outcomes कितना आ रहा है हमारा 20 आ रहा है, तो in how many ways this can be done? अगर sum of outcomes हमारा 20 आ रहा है तो in how many ways this can be done? ओके, ठीक है, तो if we make the equation, let us say first dice पे outcome is A, second पे B, third में C and fourth पे D, तो A plus B plus C plus D, this is equal to 20. This is equal to 20. Now all these values A, B, C, D have to be greater than equal to 1. And all these values also have to be less than equal to 6. ठीक है, तो ग्रेटर इक्वल टू 1 करना है तो पहले ही 1 1 डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो इक्वेशन हमारा बन जाएगा कैपिटल A प्लस कैपिटल B प्लस कैपिटल C प्लस कैपिटल D, दैट इज इक्वल टू 20 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 16। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे, बिकॉज नाउ दिस ऑल दीज आर ग्रेटर इक्वल टू 0। तो 16 स्टार्स एंड 3 बार्स, बिकॉज 4 पार्ट से ब्रेक करना है, 19 C3। दिस विल बी आवर नंबर ऑफ वेज। बट अब केसेस को एलिमिनेट भी करना पड़ेगा, बिकॉज सम हमारा कितना आ रहा है, अभी भी 16 आ रहा है, एंड कैपिटल ए स्मॉल ए तो हमारा लेस देन इक्वल टू 6 होना था, कैपिटल ए हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 5। तो जैसे ही तुमने कैपिटल ए को ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लिख दिया, तो उन केसेस को एलिमिनेट करोगे व्हेन ईदर कैपिटल ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, कैपिटल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड सो ऑन, इजंट इट सो? तो उन केसेस को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा यहाँ पे, ये भी तो करना होगा। ठीक है, क्लियर है? बट अब तुमने लिखा लेटर से कि हमने लिया कैपिटल ए ग्रेटर देन इक्वल टू 6, नाउ दीज केसेस हैव टू बी एलिमिनेटेड। तो कैपिटल ए को ग्रेटर देन इक्वल टू 6 करना है तो पहले ही 6 दे दो, टोटल सम 16 आ रहा था, 6 पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो। नाउ कैपिटल ए बिकम्स लेटर से ए डैश, क्योंकि कैपिटल ए लिख दिया हमने, 6 प्लस ए डैश, ए डैश प्लस बी प्लस सी प्लस डी, दिस बिकम्स इक्वल टू 16 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 10। अब इसका सॉल्यूशन निकालोगे तो दिस बिकम्स 10 प्लस 3 13 C3, 13 C3। बट ये हमने कब किया, व्हेन कैपिटल ए इज ग्रेटर इक्वल 6। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा वो समझते हैं। देखो एक केस, हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें, ठीक है, कि लेट अस से हमारा कैपिटल ए आ जाए इक्वल टू 6, बट कैपिटल बी तो 6 आ सकता है, ठीक है, और टोटल सम 16 था, तो 6 प्लस 6 12 हो गया। तो यहाँ पे हमारे कैपिटल ए एज वेल एज कैपिटल बी, टू ऑफ द आउटकम्स आर ग्रेटर देन 6, तो उन केसेस को फर्दर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, 19 C3 के बाद में 13 C3 वाले तुमने 4 केसेस निकाले, व्हेन कैपिटल ए इज ग्रेटर इक्वल टू 6, व्हेन कैपिटल बी इज ग्रेटर इक्वल टू 6, कैपिटल सी, कैपिटल डी, सबके लिए हमारे 13 C3 सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो हमने समझ गया 19 C3 टोटल केसेस आए अपने, माइनस किया हमने 4 टाइम्स 13 C3। बट इसके बाद में फर्दर यहाँ पे हमारी बहुत सारे केसेस की डबल काउंटिंग होगी, बिकॉज ये जो पर्टिकुलर केस है this will also be counted when we are counting capital A greater than equal to 6, and this will also be counted when we are counting capital B greater than equal to 6। तो यहाँ पे हमारे डबल काउंटिंग बहुत सारा हो जाएगा, और उन डबल काउंटिंग वाले केसेस कौन, क्योंकि सब्ट्रैक्ट किया तो ज़्यादा केसेस सब्ट्रैक्ट हो गए, तो सम केसेस मस्ट बी एडेड फर्दर बिकॉज ऑफ डबल काउंटिंग। तो ये प्रॉब्लम हमारा बहुत ही कंबरसम हो जाएगा, दैट इज वाई दिस इज नॉट द राइट अप्रोच फॉर दिस क्वेश्चन।
ये हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही अप्रोच नहीं होगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, सम हमारा इजी आ रहा था, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, स्टार्टिंग की वैल्यूज थी तो वहाँ पे एलिमिनेशन आसान था, कैलकुलेशन आसान था, बिकॉज वहाँ पे हमारी वैल्यूज डेफिनेटली सिर्फ एक ही केस में होता है जहाँ पे कि 6 से बड़ा आउटकम आ रहा था, एक साथ दो केसेस नहीं बन रहे थे, ऐसा प्रॉब्लम नहीं आ रहा था। सो वहाँ पे कैलकुलेशन ईजिली हम कर लेते, ठीक है, इस मेथड से। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा, क्यों आएगा? बिकॉज मल्टीपल केसेस बन रहे हैं हमारे। कैपिटल ए ग्रेटर देन 6 होगा, वो एक पॉसिबिलिटी हो गया, कैपिटल बी ग्रेटर देन 6 साथ में ही हो गया तो डबल काउंटिंग हो गया। अब इन डबल काउंटिंग वाले केसेस को फर्दर हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, फर्दर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट एक बार दो बार हो चुके हैं, कैपिटल ए वाले में भी हो गए, कैपिटल बी वाले में भी हो गए, तो इनको हमें फिर से ऐड करना पड़ेगा। सो ये हमारा सही अप्रोच नहीं होगा। जब भी कभी ऐसा केस हो, ठीक है, कि हमारा चाहे सम ऑफ डिजिट्स वाला केस हो, जैसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस सेशन में किया था, सम ऑफ डिजिट्स वाला केस हो, या फिर हमारा सम ऑफ आउटकम्स वाला केस हो, जहाँ पे कि हमारा हायर लिमिट भी है और उसके पास में हमारा टोटल सम आ रहा है, तो वहाँ पे अप्रोच क्या होना पड़ेगा हमारा, कि हम इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग फ्रॉम द लोअर लिमिट, हायर लिमिट से उसको अप्रोच करें। मतलब क्या हुआ इस बात का, कि हमें पता है कि स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, ऑल दीज वैल्यूज हैव टू बी बिटवीन 1 and 6। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग देम फ्रॉम 1, हम 6 माइनस समथिंग में इसको मेंशन करें, कि वी कैन ऑल्सो राइट ए एज इक्वल टू 6 माइनस कैपिटल ए। अब इस बात का मतलब क्या हुआ, सिंस स्मॉल ए इज बिटवीन 1 and 6, ठीक है, तो 6 माइनस कैपिटल ए इज बिटवीन 1 and 6, इजंट इट? तो 6 माइनस ए भी लिख सकते हैं। ये लिखने से बेनिफिट क्या होगा, बिकॉज वी नो कि कैपिटल ए हमारा क्या है, इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 0, तब तो आउटकम 6 आएगा। ठीक है, इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 0, इन दैट केस आउटकम क्या होगा, स्मॉल ए विल बी इक्वल टू 6। इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 1, स्मॉल ए विल बी इक्वल टू 5, एंड इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू 5, तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, स्मॉल ए विल बी 1। तो मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल ए का हो सकता है 5, मिनिमम विल बी 0, रिप्लेस कर दो। ठीक है, सिमिलरली फॉर स्मॉल बी इज इक्वल टू 6 माइनस कैपिटल बी, एंड सो ऑन फॉर सी एंड डी एज वेल। तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा 6 माइनस कैपिटल ए प्लस 6 माइनस कैपिटल बी प्लस 6 माइनस कैपिटल सी प्लस 6 माइनस कैपिटल डी, दिस इज इक्वल टू 20। Now this capital A plus capital B plus capital C plus capital D, this is equal to 24 minus 20, which is equal to 4. Now this is the equation that we need to solve, and we know कि capital A हो, capital B हो, capital C हो, capital D हो, all these values are between 0 and 5. मैक्सिमम 5 हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है, और सबका सम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, विच इज लेस देन 5। तो यहाँ पे एलिमिनेट हमें कोई भी केस नहीं करना पड़ेगा, कोई भी केस हमें यहाँ पे एलिमिनेट नहीं करना पड़ेगा, बिना एलिमिनेशन के ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा स्ट्रेट अवे। ठीक है, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आ जाएंगे, सिंस ऑल दीज आर ग्रेटर इक्वल टू 0, तो बस स्ट्रेट अवे सॉल्व कर लो। तो 4 stars and 3 bars, तो 7C3 विल बी अवर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, विच विल बी 7 into 6 into 5, 35 ways। दिस विल बी आवर आंसर स्ट्रेट अवे। क्या ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, सीधे सीधे हमारा आंसर आ गया, दैट इज 7C3। क्या ये क्लियर है? और अगर ये बात क्लियर है, तो हमने लास्ट क्वेश्चन में एक और चीज सीखी थी, सिमिट्री, जिसको हम यूज कर सकते हैं। सिमिट्री यूज करके क्या कर सकते हैं, सिंस देयर आर 4 डाइसेस, तो मिनिमम सम कितना आ सकता है, 1 1 1, यानी कि मिनिमम सम विल बी इक्वल टू 4, मैक्सिमम सम विल बी व्हेन ऑल आर हाईएस्ट, ऑल आर मैक्सिमम 6 6 6 6, which is equal to 24। मिनिमम इज 4, मैक्सिमम इज 24। इफ वी ऐड दीज टू, 4 + 24 बिकम्स 28। जितने आउटकम्स हमारे, जितने केसेस बनेंगे फॉर सम इक्वल टू 4, उतने ही केसेस बनेंगे सम इक्वल टू 24, और जितने केसेस बनेंगे हमारे सम इक्वल टू एस, सेम नंबर ऑफ केसेस विल बी फॉर सम इक्वल टू 28 माइनस एस, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। तो 20 हमें सम चाहिए, तो जितने केसेस बनेंगे 20 के लिए, उतने ही केसेस बनेंगे हमारे 28 माइनस 20, यानी कि 8 के लिए। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग फॉर 20, वी कैन सॉल्व फॉर 8। हम 8 के लिए सॉल्व कर लेंगे, आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, स्ट्रेट अब 8 के लिए सॉल्व कर लेंगे, और 8 के लिए सॉल्व करना आसान है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, टोटल सम इज इक्वल टू 8, एंड ऑल दीज वैल्यूज फॉर 8 क्या है, ग्रेटर इक्वल टू 1 होगा। पहले ही दे दो 4, 4 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी प्लस कैपिटल सी प्लस कैपिटल डी, दैट इज इक्वल टू 4, और इसके तो आंसर है हमारे 7C3। सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हो? इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग फॉर 20, हमने क्या किया, 8 के लिए सॉल्व कर दिया, तो एस और 28 माइनस एस, और ये हमारा कब है, जबकि 4 डाइसेस है। ठीक है, अदरवाइज जितने भी डाइस हो, बस तुम्हें ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कर लेना, मिनिमम मैक्सिमम वाला, एड मिनिमम एंड मैक्सिमम, एंड देन नंबर ऑफ केसेस विल बी सेम फॉर एनी सम दैट इज इक्वल टू एस और 28 माइनस एस, अगर 4 है, अदरवाइज जितने भी होंगे तो फिर उतने के हिसाब से हम सॉल्व करेंगे। ओके, क्या ये लॉजिक क्लियर है? इज दिस लॉजिक क्लियर? ठीक है, अब लास्टली
जो एक केस हमने मैनुअल वाला देखा था वो अपने एंड पे भी चाहो तो कर सकते हो, या मैं फटाफट से सारे के सारे जो पॉसिबल केसेस होंगे उनको मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, टोटल सम चाहिए हमें 20, तो या तो 20 के लिए निकाल लो या फिर 8 के लिए निकाल लो। अगर 20 के लिए निकालना है तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हाईएस्ट आउटकम से। ठीक है, तो 20 चाहिए हमको, 6 6 6 2, ऑल फर्स्ट 3 मैक्सिमम 6 6 6 एंड देन 2। ठीक है, ये केस हो सकता है। या फिर पहले दो को 6 ले लिया, बाद के दो में सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, तो 8 कैन बी बिकॉज ऑफ 6 + 2 और 5 + 3 और 4 + 4। तो दीज 3 केसेस वन फर्स्ट 2 आर 6। अभी जो सेकंड वाला है इसको 6 से रिड्यूस करके 5 कर दो, फर्स्ट को 6 ही रहने दो, तो 6 एंड 5 बिकम्स 11। नाउ सम चाहिए हमें 7 फॉर रिमेनिंग, तो दैट कैन बी बिकॉज ऑफ 5 एंड 2 और 4 एंड 3, 3 एंड 4 रिपीटिशन हो जाएगा। तो दीज 2 केसेस फर्दर 6 5 वाले केसेस भी कवर हो गए। अब 6 4 पे आओ, क्या 6 4 से कोई हमें केस मिलने वाला है? 6 4 हो जाएगा तो बाद में भी 4 4 हो सकता है मैक्सिमम, वहां से तो 20 मिलेगा नहीं, तो नो केस ऑफ 6 4 इज देयर। ठीक है, क्लियर है? क्या 5 5 से केस मिल सकता है? तो यस, इफ 5 एंड 5 देन बाद के दो भी 5 5 होंगे, इसके अलावा कोई भी केस नहीं मिलने वाला। दीज आर ऑल ओवर केसेस जो कि आ सकते हैं हमारे। ठीक है, टोटल केसेस आ गए सारे के सारे। अब बस सब में काउंट कर लो नंबर ऑफ आउटकम्स। इन फर्स्ट केस आउट ऑफ 4 3 आर आइडेंटिकल, तो 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल विच विल बी इक्वल टू 4 ways। Second case, out of 4, 2 are identical, तो 4 factorial by 2 factorial which is equal to 12 cases. In third case, 2 pairs हैं, तो this will be equal to 6. Fourth case, 4 factorial by 2 factorial again equal to 12. Fifth case, all 4 are, एक सेकेंड 6 5 4 3। ठीक है, 4 3 क्यों लिख दिया यहाँ पे, ये ऊपर भी गड़बड़ किया है। 6 5 11 था, हमें चाहिए था इसके बाद में क्या 9 चाहिए था, भारी मिस्टेक हो गया, 9 चाहिए था। 9 चाहिए था, तो 11 के बाद में 9 चाहिए, तो 6 5 5 4 कैन बी वन केस, इसके अलावा कोई केस बनेगा ही नहीं। तो 6 5 5 4 में वी हैव 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल यानी कि 12 केसेस। एंड लास्टली यहाँ पे हमारा एग्जैक्टली वन केस, टोटल आ गया 24 + 11 35 केसेस, 35 वेज हो गए। ओके, क्या ये क्लियर है? तो आंसर आ गया हमारा 35। ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, सो दिस विल बी द आंसर। Now next question is 4 dices are thrown. Find number of ways such that sum of the outcomes together is 16. सम आ रहा है टुगेदर हमारा 16, तो कितने वेज में आ सकता है सम 16? अब सिंस मिनिमम इज 4 मैक्सिमम इज 24, टोटल सम में 4 और 24 का आ गया 28, तो 16 में वही सम आएगा, नंबर ऑफ वेज सेम आएंगे, सेम एज 12। तो चाहे तो 12 के लिए सॉल्व कर लो या फिर 16 के लिए सॉल्व कर लो। केसेस बनाओगे, केसेस थोड़े से ज़्यादा बनने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, केसेस थोड़े से ज़्यादा बनने वाले हैं। अगर 12 के लिए सॉल्व करते हो तो हमारा a + b + c + d दिस इज इक्वल टू 12 एंड ऑल आर ग्रेटर इक्वल टू 1। पहले 1 1 दे दिया, तो कैपिटल A + कैपिटल B + कैपिटल C + कैपिटल D दैट इज इक्वल टू 8, 8 आ गया। ठीक है, नाउ ऑल आर ग्रेटर इक्वल टू 0, तो 8 स्टार्स एंड 4 पार्ट्स में ब्रेक करना, 3 बार्स 8 + 3 11, C3 विल बी अवर टोटल नंबर ऑफ वेज, तो 11 × 10 × 9 by 6, दिस विल बी 11 × 5 × 3 165, टोटल वेज आ गया 165। नाउ आउट ऑफ दिस 165 वी हैव टू एलिमिनेट दोज केसेस जहाँ पे कि हमारा कैपिटल ए, क्योंकि कैपिटल ए हैज़ टू बी, स्मॉल ए हैज़ टू बी बिटवीन 1 and 6, कैपिटल ए हैज़ टू बी बिटवीन 0 and 5, तो कैपिटल ए ग्रेटर इक्वल टू 6 वाले केसेस को एलिमिनेट करेंगे। और क्योंकि टोटल सम हमारा 8 आ रहा है, तो एक साथ कैपिटल ए कैपिटल बी दोनों हमारे ग्रेटर देन 6 नहीं हो पाएंगे, नॉट पॉसिबल, ग्रेटर इक्वल टू 6 नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ए को 6 कर दिया तो फिर टोटल सम बचा 2 बाकी सबके लिए, इजंट इट सो? तो बस 6 पुट कर दो यहाँ पे, 6 वैल्यू पहले ही दे दो, तो 8 - 6 हो गया 2, तो रिमेनिंग बचेगा a' + b + c + d दैट इज इक्वल टू
2 stars and 3 bars 5C3 यानी कि 10 will be cases when capital A is greater than equal to 6. Similarly 10 cases होंगे for capital B greater than equal to 6. Similarly 10 for C greater than equal to 6 and similarly 10 for D greater than equal to 6. Now these 4 cases have to be eliminated out of 165. तो आंसर आ जाएगा हमारा 165 minus 40 which is equal to 125. This will be the answer. 125 will be the answer. क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? ओके, और यहाँ पे अपने एंड पे मैनुअली तुम केसेस बना के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. थोड़े से केसेस ज़्यादा बनेंगे बट सॉल्व हो जाएगा केसेस बना के भी. क्या ये बात समझ में आया? जो भी हमने डिस्कस किया इस सेशन में, क्या ये सारी चीज़ें क्लियर हो? ठीक है, नेक्स्ट सेशन में डूइंग डिफरेंट क्वेश्चंस, बट जो भी हमने सीखा इस सेशन में क्या है वो सारी की सारी बातें समझ में आई. एक बार कमेंट जरूर मेंशन करना. एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन मेक श्योर हिट द लाइक बटन एज वेल. चलो इतना ही रखते हैं इस सेशन में. एंड इफ यू लाइक दिस सेशन, if you like the content, then make sure to subscribe to the channel as well as press the bell icon. That's all for this session, and bye, take care and keep learning. See you in next session.